عوام کے منہ سے دو نوالے بھی چھیننے کی تیاری، تندور مالکان روٹی کی قیمت میں اضافے کے لیے پر توڑنے لگے۔ گیس مہنگی ہونے پر روٹی 25 اور نان 35 روپے کرنے کا اعلان متوقع ہے۔ تندور مالکان کہتے ہیں کہ گیس کی قیمت بڑھ گئی تو روٹی سستی فروخت نہیں کریں گے۔ شہر بھر میں گیس کی آنکھ مچولی جاری، لاہور کے متعدد علاقوں میں گیس کی بندش اور کم پریشر کی شکایات۔ سوئی ناردن مختلف علاقوں میں 30,000 میٹر لائن بچھائے گی، منصوبے پر 2 ارب روپے لاگت آئے گی۔ اوگرا اور ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر میں مذاکرات کا دوسرا دور ختم، ملک گیر ہڑتال 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دی گئی۔ عرفان کھوکھر نے کہا کہ ہماری اولین ترجیح اوگرا کی رٹ قائم کرنا ہے، مافیا کو کسی صورت سر نہیں اٹھانے دیں گے۔ شدید گرمی اور حبس میں بجلی کی طلب میں ہوشربا اضافہ، لیسکو کو 350 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 5 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ، شہری پریشان۔ پکائیں کیا اور کھائیں کیا، چکن، سبزیاں اور پھل مزید مہنگے ہو گئے، منافع خوروں نے عوام کی زندگی جیلن بنا دی۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ خاموش تماشائی بن گئے۔ مرغی کا گوشت 552 روپے فی کلو ہو گیا، انڈے 280 روپے فی درجن میں دستیاب ہیں۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے میں ناکام۔ 2014 میں گلبرگ، مصطفیٰ ٹاؤن، ایل ڈی ایونیو 1 اور جوبلی ٹاؤن کا ریکارڈ آن لائن کیا گیا، مگر اس کے بعد 10 اسکیموں کی کمپیوٹرائزیشن کا کام بند ہو گیا۔ شہری ٹرانسفر اور مختلف سرٹیفکیٹس کے حصول کے لیے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور۔ زرعی ترقیاتی بینک کے افسران ریکوری میں ناکام، 30 ارب 94 کروڑ کی بجائے صرف 6 ارب 35 کروڑ جمع کروائے جا سکے۔ بینک کی جانب سے دیے گئے 1.5 کروڑ روپے کے قرض کی فائلز بھی غائب ہو گئی۔ سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، تنخواہوں میں اضافے کی منظوری۔ گریڈ 1 سے 16 تک تنخواہ 35% تک بڑھا دی گئی۔ گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کے لیے 30% اضافہ منظور۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 17.5% اضافہ ہوگا۔ جنرل ہسپتال میں زیر علاج تشدد کا شکار رضوانہ کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ پروفیسر فرید الظفر کہتے ہیں کہ خون میں انفیکشن کم ہو گیا، پلیٹلیٹس کی تعداد 1,05,000 ہو گئے۔ میڈیکل بورڈ جلد سرجری کے مرحلے کا آغاز کریں گے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے رضوانہ کی قانونی تحویل حاصل کر لی۔ چیئرپرسن بیورو سارہ احمد کہتی ہیں رضوانہ کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا، صحت یابی کے بعد رضوانہ کی تعلیم کا انتظام کریں گے۔ پولیس کے شہداء کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ آج یوم شہدائے پولیس منایا گیا۔ ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے جوانوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اپنے رکھتے جگر وطن پر قربانی کرنے والی ماؤں کو بھی سلام۔ سیف سٹی نے خصوصی ویڈیو پیغام جاری کیا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا شہداء کو خراج عقیدت، کہا ملک کی خاطر جانوں کے نذرانے دینے والے شہداء ہمارا فخر ہیں، قوم ان کے خاندانوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ پولیس کے شہداء کی عظیم قربانیوں پر قوم کو فخر ہے۔ پولیس نے قیام امن کے لیے ہمیشہ مثالی خدمات سے انجام دیں۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا یوم شہدائے پولیس پر پیغام، کہا کہ شہداء کے خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ احمد محسن نقوی نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر، آئی جی، سی سی پی او بھی ہمراہ تھے۔ شہدائے پولیس کو کمشنر محمد علی رنداوا کا خراج عقیدت، کہا کہ آج قوم کے بہادر جوانوں کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے، شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔
अलहमरा हॉल में यौम शहदा पर पुरवका तकरीब, CCPO बिलाल सिद्दीक कुमियाना और शहदा की फैमिली शरीक हुई। IG पंजाब का शहीदों के वरसा को सलाम। डॉक्टर उस्मान अनवर ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में यादगार शहदा पर फूल भी चढ़ाए। हम आपकी मोहब्बत में, आपकी मोहब्बत की दीवानगी में, आपसे इश्क में हम नहीं रुकेंगे। आज इन 24 घंटों में हम आपके वेलफेयर फंड में और हर आने वाले 24 घंटे में हम आपके वेलफेयर में इन कोशिशों की वजह से 1,25,00,000 रुपए का इजाफा कर रहे हैं। शहदा हमारा कीमती असासा है। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर का यौम शहदा पुलिस पर पैगाम, कहा कि शहदा की जुर्रत और बहादुरी हमारे लिए मशअल राह है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद ने कहा कि शहदा की लाजवाब कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। SP ट्रैफिक सुहेल फासिल की शहीद तनवीर इकबाल की कब्र पर हाजिरी, कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह ख्वानी की। शहीद तनवीर इकबाल ने श्रीलंकन टीम की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश किया था। CTO लाहौर की शहीद DIG सैयद अहमद नबीन की कब्र पर हाजिरी, पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। अपने पैगाम में मुस्तनसिर फेरोज ने कहा कि यौम शहदा पुलिस तजदीद अहद का दिन है। हमें क़याम अमन के लिए शहदा की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। यौम शहदा पर पुलिस शहदा की फैमिलीज के लिए बड़ा तोहफा, निजी स्टेट डेवलपर शहदा की फैमिलीज को 68 प्लॉट तोहफे में देंगे। IG पंजाब और चेयरमैन निजी स्टेट डेवलपर में मुआहदा तय पा गया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, घरों की तामीर के लिए महकमा हर मुमकिना माली मदद फराहम करेगा। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का जिला हाउस का दौरा किया गया। वकला, सहाफ़ी बरादरी, डॉक्टर और तलबा का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। सानेहा 9 मई पर इजहार अफसोस किया, कहा कि पाक फौज ही हमारी रेड लाइन है। वक्त का सानेहा 9 मई के किरदारों को सख्त सजा देने का और इसको देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, दुख हुआ है। घर का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। आज हमने जिनाह हाउस का विज़िट किया है और हमें ये देखकर बहुत अफसोस हुआ। जो भी 9 मई को हुआ हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और हमारी दुआ है कि इसके बाद कोई भी इस किस्म का वाक़या दोबारा पेश ना आए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहनें JIT के सामने पेश, हलीमा खान और उस्मा खान ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। ज़राए के मुताबिक उस्मा खान ने जिना हाउस एहतजाज में शामिल होने का एतराफ़ कर लिया। हलीमा खान का ज़मान पार्क में मौजूद होने का दावा। अदालत के खिलाफ तकरीर और जलाओ घिराव का केस, यास्मीन राशिद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने जुडिशल रिमांड में 17 अगस्त तक तौसीह कर दी। पुलिस को चालान जल्द जमा करवाने की हिदायत। PTI ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर मजीद 8 रहनुमाओं को पार्टी से निकाल दिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के दस्तखत से बरतरफी के नोटिस जारी, पार्टी का नाम और ओहदा इस्तेमाल करने से गुरेज करने की हिदायत। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। PTI कारकुनान की बड़ी तादाद IPP में शामिल। सीनियर रहनुमा मियां खालिद महमूद से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया गया। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से वीडियो पैगाम जारी, कहा अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों पर मोदी सरकार के जुल्म बंद करवाए। जमीयत अहले हदीस सियासी तशख़्ख़ुस की बहाली के लिए मुतहरिक हो गई। 10 अगस्त को फ़ज़ाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जिसमें मुल्क भर से रहनुमा और कारकुन शिरकत करने जा रहे हैं। 14 अगस्त को जमीयत अहले हदीस के ज़ेरे एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया जाएगा। उस्मान बुज़दार की अदम पेशियों के बावजूद नैब पीछे न हटा। साबिक़ वज़ीर आला आज फिर तलबी के बावजूद पेश न हुए।
नैब ने रिकॉर्ड समेत तलब कर रखा था। उस्मान बुज़दार के खिलाफ असातिज़ात समेत तकर्रुर और तबादलों में करप्शन की तहकीकात जारी है। STO GM मूसा सब डिवीजन अजहर बलोच की गाड़ी पर फायरिंग। थाना शाहदरा पुलिस ने दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। फायरिंग से STO मोजज़ाना तौर पर महफूज रहे। शहरियों की दादरसी और बरवक्त इंसाफ की फराहमी का मिशन। CTO लाहौर का मुख्तलिफ थानों का दौरा, कैमरा सर्विलेंस और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मुस्तनसर फिरोज ने कहा, हमारे लिए साल से बढ़कर कोई अहम नहीं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बजट की मंजूरी, सर्विसेज, हस्पताल की अपग्रेडेशन से मुताल्लिक़ उमूर का जायजा लिया गया। हस्पताल की अपग्रेडेशन का मास्टर प्लान भी तलब कर लिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शाहदरा के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। टीचिंग हस्पताल में अमले की कमी पर मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट और शाहदरा थाने भी गए, इंतजामात का जायजा लिया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम भी शाहदरा टीचिंग हॉस्पिटल पहुंच गए। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ज़ेर तमाम कार्डिक फिल्टर क्लिनिक का इफ्तिताह किया। VC फातिमा जिना, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, डॉक्टर कामरान और डॉक्टर तस्कीन भी उनके हमरा मौजूद थे। दाता दरबार की तौसीक़ के लिए कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। कमिश्नर लाहौर का कहना था, दरबार को तौसीक़ देने के लिए 17 कनाल 4 मरले अराज़ी मज़ीद शामिल की जा रही है। तौसीक़ी मंसूबे पर सब मुत्तफ़िक़ हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए पीने के पानी का बड़ा मंसूबा। पंजाब आब पाक अथॉरिटी ने यूनिसेफ के ताउन से मंसूबे की बुनियाद रखती। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आब पाक सैयद जाहिद अजीज़ कहते हैं कि नौ देहात को साफ पानी मुयस्सर होगा। 40,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन को पीने का पानी फराहम करेंगे। पंजाब पुलिस के मुतअद्दिद अफसरान की ग्रेड 20 में तरक्की। SSP CIA कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक, वकासुल हसन, सुहेल जफर चट्ठा और तौसीफ हैदर को DIG रैंक मिल गया। सैयद अली नासिर रिजवी की DIG रैंक के अहदे पर रेगुलर तरक्की। तरक्कियों का नोटिफिकेशन आइंदा चंद रोज में जारी होगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला शकील अहमद मियाँ का IGJ खराजात ऑफिस का दौरा किया गया। मियाँ फारूक नज़ीर ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। जेलों में यूटिलिटी स्टोर्स के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। कैदियों के लवाहिकीन और जेल मुलाजमीन के अहल खाना खरीदारी कर सकेंगे। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम थीसिस शो का दूसरा रोज़। आर्किटेक्चर प्रोग्राम के तलबा के थीसिस नुमाइश के लिए पेश किए गए। शुरा तलबा का काम देखकर तारीफ किए बगैर न रह सके। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का अलहमरा आर्ट गैलरी का दौरा। स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के तलबा के थीसिस डिस्प्ले का जायजा लिया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम भी हमरा थे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से फैशन की दुनिया में अहम कदम। स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन ने अपना फैशन ब्रांड एस्कोट्योर लॉन्च कर दिया। तलबा ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों को मुनफरिद काम के जरिए उजागर किया। बैरून मुल्क किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लें, तलबा की रहनुमाई के लिए एडपर कंपनी बना दी गई। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी और डॉक्टर शहजाद अनवर की खुसूसी शिरकत। CEO एडपर जुल्फ़कार राहत कहते हैं कि कंपनी के जरिए पाकिस्तानी तलबा को बैरून मुल्क रोज़गार के मौके भी मुयस्सर होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, मुशीर खेल वहाब रियाज, कमिश्नर और CCPO लाहौर की वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन एहसन रमज़ान के घर आमद। एहसन रमज़ान मुशीर खेल को मिलते हुए आबदीदा हो गए। वहाब रियाज ने कहा, स्पोर्ट्समैन हमेशा मजबूत होता है। एहसन को स्नूकर टेबल लेकर देंगे और मुफ्त मेंबरशिप भी होगी।
जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम महकमों से जश्न आज़ादी प्रोग्राम्स और शेड्यूल्स तलब। कमिश्नर ने तमाम महकमों के अफसरान को अहदाफ दे दिए। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, हुजूरी बाग में जश्न आज़ादी की मेगा तकरीब मुनक्किद होगी। शहर भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर। बाजारों में सब्ज हलारी परचम, झंडियां और मुख्तलिफ सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। जश्न आज़ादी मनाने के लिए बच्चों और बड़ों का जोश दीदनी। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से खुसूसी हेल्थ कैंप। बच्चों और बड़ों की खुराक और उनकी सेहत का मुआयना किया गया। सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम ने भी शिरकत की। कौमी क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में शिरकत। सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तानी वफ्द का अगस्त के आखिरी हफ्ते में भारत जाने का इम्कान। वफ्द भेजने का फैसला वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। सिक्योरिटी का मामला ICC